بیٹا سر ایک بچی کا سوال ہے، وہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا میرا یہ کہنا ہے کہ آئی نیڈ اسپیس تو یہ ڈسٹینس کو کریٹ کر دیتا ہے؟ اچھا یہ والا بڑا کامن سوال ہے. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے. تو اس لیے اگر کوئی دوسرا خیال کرنے والا نہ ہو تو رشتے کو بچانے کے لیے عورت کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں عام طور پر یہ سب کچھ لڑکی سے توقع کی جاتی ہے کہ سہنا سیکھو سہنا سیکھو. ہاں یہ دونوں کا ایک رول ہے. ایک اگر ہم ایک عورت کو کہیں کہ آپ ہی نے سارا کچھ ٹیکل کرنا ہے تو گاڑی کے دو پہیے میں ایک پہیے کی ہوا نکل گئی ہے تو ظاہر دوسرے کو تھوڑا سا خیال کرنا ہے کیونکہ دونوں میں ہوا ہوگی تو چلے گی نا. اور اگر ایک کی ہوا ہمیشہ نکال کے رکھے تو گاڑی کیسے آگے چلے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کو صبر کرنا چاہیے اور عورت کا صبر بڑے معنی رکھتا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی نے جو اگزامپل سیٹ کی ہیں اس میں مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے اپنی ذاتی مثال پیش کی ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں تاکہ ان کا گھر بسا رہے. ٹھیک ہے کبھی عورت کو غصہ آتا ہے کبھی مرد کو غصہ آتا ہے تو ایک چیز کسی کے لیے اس کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو دوسرا جو ساتھی ہے زندگی کا ساتھی ہے شریک حیات ہے اس کو تھوڑا سا لحاظ کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے ریفرنس سے پوچھ رہے ہو تیسری بات یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے. تواضع اختیار کرتا ہے نا. تو انسان اگر حق پہ ہونے کے باوجود اپنی بات چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ پسے ہوئے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو معاف کر سکتا ہے نا. تو اللہ آپ کی عزت کبھی کم نہیں کرتا. انسان کم کرنا بھی چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے. تو اس لیے اگر کوئی دوسرا خیال کرنے والا نہ ہو تو رشتے کو بچانے کے لیے عورت کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. جی نیکسٹ کوشچن. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری اپنی لائف کے ساتھ یہ باتیں گزر رہی کہ 6 سال ہو گئے میں اپنے ہسبینڈ سے دور ہوں. 3 سال تک میں جاتی رہی ہوں. پھر 3 سال بعد اس طرح ہوا کہ ابھی 1-1.5 ماہ پہلے میں ان کے پاس گئی. ان کی طبیعت بہت خراب تھی. بچوں نے مجھے فورس لگتا ہے کہ بلایا اچھے میرے بچے ہیں ماشاء اللہ. 5 میری بیٹیاں ہیں ایک میرا بیٹا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ جو ہے نا ریلیشن ٹائپ کر کیا کیا یعنی ایک میری ڈیورس ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک بار بھی انہوں نے رکھی ہوئی کام کی تھی نا یعنی کہ اس کے ساتھ ان کے ریلیشن وغیرہ بھی ہیں. تو اب مجھے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی رہو اس کے ساتھ یعنی کہ جو بھی ہوگا ایک روم میں سب کے ساتھ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی بلکہ اس کی رسپیکٹ زیادہ میرے سے میری رسپیکٹ کم ہے. تو اب میں یہ کوشچن بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس طرح نکاح میرا دوبارہ اس طرح نہیں ہوا جیسے 2 مردوں کی جوڑی میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نکاح اس طرح ہو جاتا ہے یعنی کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتا دی یہ نکاح ہو گیا باقی کو بھی شامل کر لیا اپنے بچوں کو بھی شامل کر لیا. تو اب میں یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ آیا یہ نکاح جائز ہے کہ یہ غلط ہے. پہلے آپ کی طلاق ہو گئی تھی؟ ایک طلاق ہوئی تھی. کتنا عرصہ گزرا تھا؟ اس کو 3 سال گزرے. درمیان میں شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں جاتی ہوں میں جاتی تھی لیکن بچوں سے ملاقات نہیں کرنی تھی جیسے دلیل کرتی گھر سے کام. دوسرا نکاح اس طرح منعقد نہیں ہوتا باقاعدہ ہوتا ہے. اور اسلام ایسے یعنی ایسا تعلق جس میں ایک ہی کمرے کے اندر 2 بیویاں رہ رہی ہوں
नहीं वो बीवी नहीं है, वो बांदी है, बांदियों का दौर ही नहीं है भाई। लेकिन वो नहीं ना मानते, कहते हैं कि तुम बीमार हो। मैं असल में मसला ये था कि मैं बीमार थी, मेरे से घर रखने नहीं। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज यहाँ फिक्री सवाल ना करें, ये फिक्री सवाल ना करें। हम सिर्फ मी से हुई तक का जो सफर है, आपने ये सवाल अलग से कर लें, अलग से कर लें, क्योंकि अगर हम फिक्री सवाल करेंगे तो फिर तो हम इस रिलेशनशिप को नहीं सीख सकेंगे। हाँ ये बात है कि वो क्या चाहते हैं, उनका चाहना शरीयत नहीं है, जो अल्लाह की शरीयत है उसके मुताबिक ये है कि आपका निकाह नहीं है। दूसरी दफा हो सकता है अक़द सानी, लेकिन उसका तरीक़ाकार वही है, निकाह की शराइत पूरी की जाए। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां कर दे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दादा मेरा सवाल है कि मेरी बेटी और बेटा माशाल्लाह कोर्स कर रहे हैं ये वाले, कि हम घर के माहौल को कैसे बेहतर बना सके। जैसे अभी आपने बताया कि पहले घर से भी बच्चे सीखते हैं, तो जो हमारे में खताइयाँ हम कैसे बेहतर बना सके ताकि हमारे बच्चे हमारी तरफ देख के अच्छा सीख सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी आप बैठे। जी सर। अस्कर यू नो द पैटर्न के क्वेश्चंस पहले राइट डाउन करवा लेते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में अपने कैंपस में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वेयर इज अस्का? अस्का है जी। क्वेश्चंस के ऊपर किसी फर्क को दें जो क्वेश्चंस पहले टेकअप कर लें ताकि टॉपिक से हम बाहर ना जा सकें। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? जो आपने सवाल किया कि हम अपने घर के माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सीखें और फिर बच्चों के लिए नमूना बने। सीखेंगे तो सिखाएंगे इंशाल्लाह, बगैर सीखे सिखा नहीं सकते। बगैर सीखे जो सिखा रहे हैं उसका वो नफा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। जी बेटा। सर एक बच्ची का सवाल है, वो ये पूछती है कि क्या मेरा ये कहना है कि आई नीड स्पेस, तो ये डिस्टेंस को क्रिएट कर देता है? अच्छा ये वाला बड़ा कॉमन सवाल है। लोग कहते हैं कि मुझे स्पेस, तो डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि शक है कि स्पेस का क्या मतलब है। तो उसमें ये कि आपको स्पेस से ये मुराद है कि आपको यानी अपने हस्बैंड के साथ एक ताल्लुक में कमी करनी है, आपने कोई जो है वो उसमें कोई डिस्टेंस कायम करना है, या ये है कि यानी कि कोई और यानी सोचने के लिए मोहलत चाहिए, या ये कि कुछ वक्त ऐसा चाहिए, या ये कि कोई और बात है। उसको जो है पहले ठंडे दिलो दिमाग से सोच के सॉरी अगर उसे वाज़ेह कर दिया जाए तो फिर ये है कि अल्लाह ताला का फजलो करम रहता है, वरना ये है कि डिस्टेंस आ जाता है। जी आपने सवाल किया कि मैं अपनी मी को कैसे खत्म कर, यानी मैं अपनी मी को कम कैसे करूं। मैं न कम हो सकती हूँ न मैं ज्यादा हो सकती हूँ। इंसानी जिंदगी में मैं माजरत चाहती हूँ, आपको कोई मेडिसिन चाहिए? ले लिए। इंसानी जिंदगी में जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की हकमियत को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई को तस्लीम कर लेता है, अपने आप को अल्लाह के ताबे कर देता है, तो रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं लगता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पर जो 3 आयात ख़ास तौर पर तिलावत करते थे, तीनों में एक कदर मुश्तरक है, तक़वा। अब सोचें, तक़वा का मतलब है अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने से ये मुराद है कि अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख कर उसकी इताअत कर और उसके अजाब के खौफ से, उसके रोके से रुक जाओ। जो अल्लाह के रिश्ते को याद रखता है ना, उसके लिए कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं होता। तो जो अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख के काम करता है, तो वो फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता ना बहुत सारी दूसरों से। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब से डरता है, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करता।
तकवा बुनियाद है इस रिश्ते की। तो आप मी से वही का सफ़र करना चाहते हैं तो ये तकवा का सफ़र है। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नसीहत की है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सच्ची खरी बात करो। तो सीधी सच्ची खरी बात करना जो है इस रिश्ते को और मजबूत कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अकेले होते हैं, जब आप इकट्ठे होते हैं, फ़र्क क्या है? अकेले में आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात को देखते हैं, अपने इमोशंस को देखते हैं, हालात व वाक़यात में हर चीज़ में अपने आप को देखते हैं, अपने कंफर्ट को देखते हैं। तो जाहिर है कि उसकी वजह से रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। जब टुगेदर इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होने की वजह से इंसान जैसे अपने इमोशंस को देखता है, दूसरे के इमोशंस के लिए भी जगह रखे ना, दूसरे का भी ख्याल रखना है कि दूसरे के भी इमोशंस हैं और दूसरे के लिए भी, दूसरे की भी कंफर्ट है। तो जब आप लिहाज रखते हैं, दूसरे का भी ख्याल रखते हैं, तो रिश्ते के लिए गुंजाइश बन जाती है। और मोहब्बत जो है इसके लिए बेसिक चीज़ है, लेकिन दानिशमंदी के साथ ये चीज़ फिर आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद, मेरा सवाल है कि जब एक कमारी लड़की जिसकी निकाह की उम्र हो चुकी है और वो अपने पसंद का इजहार करना चाहती है कि फ़लाँ शख्स है, मैं उससे निकाह की नियत रखती हूँ, तो ये इजहार उसे वालिदैन से किस तरह करना चाहिए? और अगर उसे इख्तिलाफ का सामना पड़ता है वली की तरफ से, तो इसमें उसे क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? ये आज के दौर का सबसे पसंदीदा सवाल है। क्योंकि बहरहाल दौर चेंज हो गया ना। जब आप बच्चियों को को एजुकेशन में पढ़ाएंगे, जब बच्चियां जॉब करेंगी और को वर्क स्पेसेस होंगी, जब सोसाइटी में मर्द और औरत का इकट्ठे होना बहुत इजी होगा, तो ऐसे सवालात तो होंगे। नेचुरली सोसाइटी की सूरत हाल ऐसी हो चुकी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी लड़की के दिल में दूसरे के बारे में कोई अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं? भाई इंसान है वो, उसके दिल में ऐसी बात आ सकती है। आना गलत नहीं है। अब बात इन्होंने पूछी है इजहार करने की, कि वो इजहार कैसे करे अपने पेरेंट्स के सामने। जहां तक आपने सवाल किया तो मुझे लगता है कि आप जैसी कोई लड़की हो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है इजहार करना। लेकिन ये है कि, और लड़कियां आजकल ऐसी हैं, तो उसमें ये कि यानी अपनी तरफ से जो है वो एक सच्चाई के साथ अपने पेरेंट्स के सामने बात रखनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स अगर एग्री नहीं करते फिर क्या, इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवली। मैं दिल से माजरत चाहती हूँ कि मैं यानी तकलीफ में हूँ, जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही, समा खराशी हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी कर दें सबके लिए। हाँ जी हाँ। तो बात यह है कि पेरेंट्स का राइट है और वो बेहतर समझते हैं। आम तौर पर हम सब लोगों के जहन में यही होता है। लेकिन पेरेंट्स को भी या तो पहले बच्चे के लिए ऐसा माहौल ना दें। अगर माहौल दे दिया है तो अब उन्हें यानी यूँ नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ हम बेहतर सोच सकते हैं या हम बेहतर ख्याल कर सकते हैं। उन्हें आगे बढ़ के यानी गैर जानिबदारी के साथ मामलात का जायज़ा लेना चाहिए। और अगर मामलात दुरुस्त ना हो तो ऐसी सूरत में फिर अपनी औलाद के सामने ये बात रखनी चाहिए और लॉजिकली उसको देखना चाहिए। लेकिन मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चियों को भी अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। हाल वक्ता ये है कि अगर पेरेंट्स किसी भी सूरत एग्री ना करें, रिश्ता बेहतर है, और पेरेंट्स की समझ में नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, कोई चचा, कोई ताया, खाला, मामू, फूफी, किसी न किसी को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अगर इन्वॉल्व कर लें
फिर ख़ानदान में जब मुश्तरका तौर पर एक बात हो तो फिर उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ कर देंगे, लेकिन इस्तिखारा भी करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात को रद्द तो नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, रिश्ता आने से लेके रिश्ता पक्का होना, इस चीज़ का कंसर्न ज़्यादा लगाते हैं कि वो रिश्ता हमारे लिए बेहतर है, और कभी कभी माँ बाप कहते हैं कि ये रिश्ता हमारी नज़र में आप इससे कर लें निकाह, लेकिन फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है, वो कुछ भी गलत हो जाता है, तो फिर कहते हैं किस्मत पे था, ये किस्मत में था। तो फिर हम मुकद्दर, तकदीर और माँ बाप के फैसले में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि क्या हमारे लिए बेहतर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें जिनकी बुनियाद पर रिश्ते किए जाते हैं, हसब नसब, माल, जमाल और दीनदारी। तुम दीनदारी को तरजीह देना। तो बात तो वाज़ेह है, यानी जिस बुनियाद पर रिश्ता करना चाहिए वो दीनदारी। कौन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाला है और सच्चा दीनदार कौन है, इस बुनियाद पर अगर रिश्ता करना हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ कर देते हैं। रिश्ता आया, वहाँ से लेके रिश्ता तय हो गया, ये जो सफ़र है इसमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है इस्तिखारा करना, फिर छानबीन करना भी है। जिस बुनियाद पर रिश्ता तय करना वो दीनदारी है, वो अल्लाह के रसूल ने बता दिया। आमतौर पर हमारे यहाँ जब रिश्ता तय किया जाता है तो उसकी बुनियाद या मालदारी होती है या हसब नसब होता है या इसके अलावा यानी कोई भी और चीज़ हो सकती है, लेकिन दीनदारी को हमारे यहाँ कम बुनियाद बनाया जाता है। तो यही असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दीनदारी की बुनियाद पर होगा तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दीनदारी की बुनियाद पर होने वाले रिश्ते नाकाम नहीं हो सकते। नाकाम तो वो भी हो सकते हैं, अंजाम उनका भी ख़राब हो सकता, तलाक का बाब ही ना खुलता अगर सारे दीनदार जो है वो रिश्ता निभा सकते होते। खुला का सिलसिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब में इसके बारे में कुछ ना होता अगर सारे दीनदार रिश्ता निभा सकते होते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये गुंजाइशें भी रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तरीक़ाकार तो यही है। जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बीवी पर शौहर का कितना हक होता है, कहाँ तक, और जो बीवी है क्या वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पर भी शौहर की मर्जी को फोकियत दे? सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अल्लाह के रसूल, एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आपने फरमाया उसके शौहर का। उन्होंने पूछा कि एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आपने फरमाया उसकी माँ का। बहुत ही खूबसूरती के साथ रिश्तों को उनका जायज़ मकाम दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब बात ये कि आपने कहा कि एक औरत पर मर्द का हक कितना है। मर्द का हक फ़ायक है, यानी मर्द का राज वो रखेगी। जो अल्लाह की किताब से हमें पता चलता है, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन, कि जो नेक औरतें होती हैं वो फर्मा बरदार होती हैं, और जो नेक औरतें होती हैं वो अपने शौहर के पीछे से गैब में, उसकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की और उसके घर, उसके बच्चों की हिफाजत करने वाली होती हैं। अब बात आपने की कि छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं तो उनका क्या होना चाहिए। ख्वाहिशात अच्छी भी हो सकती हैं, पोस्टपोन भी हो सकती हैं, पूरी भी हो सकती हैं। हालात व वाक़यात के मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं। कहीं वापस लेनी पड़ेगी, कहीं पोस्टपोन करना पड़ेगा, कहीं पूरी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताज़ा, बेसिकली ये क्वेश्चन मेरी मदर का है कि एक बीवी अपने मरहूम शोहर के लिए कैसे सदका जारिया बन सकती है।
औलाद के सदका जारिया होने का तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से पता चलता है। एक बीवी सदका जारिया के अमाल कर सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे अपने शौहर के लिए खाना खिला सकती है, किसी के लिए पानी का इंतज़ाम कर सकती है, किसी की तालीम का इंतज़ाम कर सकती है। शौहर के लिए अगर उसने हज नहीं किया और वो पहले हज कर चुकी है तो हज बदल कर सकती है, अलाउड है। शौहर ने अगर कहीं बीमारी में या किसी वजह से रोज़े नहीं रखे, अगर वो चाहे तो उसके लिए रोज़े रख सकती है। इसी तरह से यानी सदका जारिया में बहुत से अमाल हैं जो अमाल वो अंजाम दे सकती है उसके जाने के बाद। दोबारा फिर सवाल किया मी से वही तक।